آداب اور سے ناظرین، ایک جیتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں ہو تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جیتی خبرنامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ بے باک بے خوف بے لاگ آپ کی آواز۔ ناظرین، ریاست تلنگانہ میں طوفانی بارش کی تباہی سے عروس البلاد شہر حیدرآباد پانی پانی ہو کر رہ گیا ہے۔ کئی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ وہیں پر ریاست تلنگانہ میں کورونا وبا کووڈ-19 کا قہر بھی جاری ہے۔ اس دوران ریاستی حکومت کی حکمت عملی مکمل ناکام ہوتی دکھائی دی گئی ہے۔ راحت کاری کے کاموں میں عوام کو راحت پہنچانے کے سلسلے میں حکومت نے کسی بھی قسم کے ٹھوس عملی اقدامات انجام نہیں دیے ہیں۔ بالخصوص محکمہ مجلس بلدیہ حیدرآباد GMC مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے۔ بارش کی پانی کی نکاسی کے سلسلے میں اور عوام کو جس طرح سے GHMC کے عہدیدار بنیادی سہولتیں فراہم کرنا چاہیے تھا وہ فراہم نہیں کر سکے۔ ناظرین، اسی دوران بارش میں مرنے والوں کو 25 لاکھ روپے دینے کا جماعت اسلامی تلنگانہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ریاستی تلنگانہ حکومت سے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ حامد محمد خان نے کہا کہ حیدرآباد میں جو بارش کے بعد تباہ کاریاں ہوئی ہیں، حکومت کو ان واقعات کا سنجیدگی سے نوٹ لیتے ہوئے آئندہ اس طرح کے حادثات سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات روبے عمل لانے چاہیے۔ اس سلسلے میں بہترین راہ عمل بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ غریب عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، لہذا اس طرح کے سنگینی مسائل کا مستقبل میں حل نکالا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرین کو حکومت کی جانب سے دی جانے والی امداد ناکافی ہے، حکومت اس میں اضافہ کرے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ حالیہ بارش سے ہونے والی تباہ کاریوں میں فوت ہونے والے متوفیوں کے افراد خاندان کو 25 لاکھ روپے ایکس گریشا دیا جائے۔ ناظم شہر جماعت اسلامی ہند شہر حیدرآباد حافظ محمد رشاد الدین صاحب نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند حیدرآباد کی جانب سے 13 اکتوبر 2020 عیسوی سے بارش سے متاثرین کی ریلیف کا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش سے تباہ کاریوں کی خبر عام ہوئی، جماعت اسلامی ہند حیدرآباد نے فوری طور پر ریلیف کے کاموں کے آغاز کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں جماعت اسلامی ہند حیدرآباد کی جانب سے ہاشم آباد، ندیم کالونی، الجبیل کالونی، غازی ملت کالونی میں بچاؤ اور راحت کاری کے کاموں کا آغاز کیا گیا ہے۔ بعد ازاں شہر کے مختلف علاقوں میں جو بارش سے شدید متاثر ہوئے تھے، جن میں عثمان نگر، عبداللہ یحییٰ نگر، گلشن اقبال کالونی، حافظ بابا نگر، ندیم کالونی، بال ریڈی نگر، ناچارام، رسول پورہ، سرور نگر، کالا ڈیرا، نشیمن نگر، بھوانی نگر، تالاب کٹا، عثمانیہ پور، نیو یونیورسٹی کیمپس، ایٹکمٹ، مالگاج گیری و دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر راحت کاری کے کاموں کو انجام دیا گیا۔ جماعت اسلامی حیدرآباد اور ایسائیوں کے تقریباً 400 سے زائد والنٹیئر گزشتہ 2 ہفتوں سے شب و روز راحت کاری کاموں میں مصروف ہیں۔ ان قائدین نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں ایسے متاثرین جو پانی میں پھنسے ہوئے تھے انہیں محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام انجام دیا گیا۔ اس کے لیے جماعت اسلامی ہند نے کچھ کشتیوں کی مدد حاصل کی۔ اس کے علاوہ کچھ عارضی کشتیاں بناتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ ناظرین، جماعت اسلامی کی جانب سے 50,000 سے زائد کھانے کے پیکٹس مختلف علاقوں کے لوگوں کو اب تک پہنچانے کا کام انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ بنیادی ضروریات کی اشیاء بھی پہنچائی گئی۔ ناظم شہر نے کہا کہ فی الحال بازآباد کاری کے کاموں کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس کے تحت 3,000 کٹس مختلف علاقوں کے متاثرین کو پہنچانے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ فی کٹ کی قیمت تقریباً 4,000 ہوگی، جس میں کھانے پینے کے برتن،
खाने पीने के बर्तन, ब्लैंकेट्स, बिस्तर और ग़िज़ाई अजनास भी शामिल होंगे। बाज़ इलाक़ों में किट्स के बजाय नकद रकम चेक्स की शक्ल में दी जाएगी। बाज़ाबादकारी के दूसरे मरहले में ऐसे 10,000 ख़ानदानों को इमदाद पहुँचाने का मंसूबा है जिन्हें बारिश में शदीद माशी नुकसान पहुँचा है। नाजरीन, कोरोना वबा कोविड-19 के कहर के दौरान कोरोना वैक्सीन को इंतखाबी वादे में शामिल करने पर जमात इस्लामी हिंद का शदीद एतराज़। जमात इस्लामी हिंद के सदर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि मुफ्त वैक्सीन फराहम करना किसी भी हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है और उसकी ज़िम्मेदारी है और उसे सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आज जमात इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर में मुनक़दा माहाना ब्रीफिंग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमात इस्लामी हिंद के सदर सादतुल्लाह हुसैनी ने बिहार असम्बली इंतखाबात से CAA मदरसों और आज़ादी सहाफ़त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर के बारे में बात की। बिहार इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के मंशूर में मुफ्त वैक्सीन फराहम करने के वादे के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा के ख़ात्मे के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम करना हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ है। इसको इंतखाबी वादे के तौर पर किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, हुकूमत को उसे पूरे मुल्क में मुहैया करना है, उसका फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए। वैक्सीन सिर्फ मुनासिब आजमाइशी मुद्दत के बाद शुरू की जाती है। हुकूमत का सारा ज़ोर फलाह व बहबूद पर मबनी होना चाहिए और फलाही मनसूबों के ऐलानात सिर्फ इंतखाबात के वक्त नहीं किए जाने चाहिए। अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और गरीबों पर खर्च किया जाए। कोविड-19 के कहर के दौरान हो या फिर तूफ़ानी बारिश की हंगामी सूरत हाल के दौरान जिस तरह से मादा परस्त लोग लूटमार मचाए हुए रखते हैं अवामी इमदाद को, उसी तरह वहीं पर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो गरीब और पसमानदा मजबूर लाचार अवाम की मदद करना इनका फ़र्ज़ होता है। नाज़रीन, ऐसे ही एक शख्स जो गरीब बस्तियों में नंगे पाँव इलाज करने वाला मसीहा कोरोना वायरस की वबा के बायस जहां लोगों को मुश्किलात का सामना है, वहीं पर दूर दराज के इलाक़ों में सेहत की सहूलियात में मुतासिर हैं। ताहम इंडिया में 87 बरस के ऐसे डॉक्टर भी हैं जो मादा परस्ती के दौर में नंगे पाँव साइकिल पर चलकर गरीबों का इलाज करते हैं। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के शहर चंद्रपुर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर रामचंद्र दानेगर कोरोना वायरस की वबा के दौरान रोज़ाना साइकिल पर 10 से 15 किलोमीटर घर घर जाकर गरीब मरीजों की तशख़ीस करते हुए इनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर रामचंद्र दानेकर ने बताया कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और गुज़िश्ता 60 वर्षों से गरीबों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा के डर से डॉक्टर मरीज़ों का इलाज नहीं करते, लेकिन मुझे ऐसा कोई खौफ नहीं है। मुझे फ़ख्र महसूस होता है गरीब बस्तियों में जाकर, गरीब पसमानदा इलाक़ों में जाकर गरीबों का इलाज करना। आजकल नौजवान डॉक्टर सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, लूटमार मचाए हुए रखे हैं। कोरोना वबा के इलाज के दौरान वो गरीबों का इलाज ही नहीं करते। इन्होंने बताया कि वो अपनी जवानी में न सिर्फ एक दिन में कई गांव का सफ़र करते बल्कि वहां एक आध दिन भी रह जाते, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा है। इन गांव वालों का कहना है कि डॉक्टर रामचंद्र दानेकर एक फ़ोन कॉल पर दस्याब होते हैं और वबा के दिनों में भी इन्होंने इलाज से इनकार नहीं किया और ना ही खौफजदा हुए। इनके मुताबिक जब दीगर डॉक्टरों ने इलाज से इनकार किया तो डॉक्टर रामचंद्र दानेकर ही थे जिन्होंने गांव के मरीजों की बीमारियों की तशख़ीस जारी रखी और दवा तजवीज़ करते रहे और इनका भरपूर इलाज करते रहे, जो हुकूमत ने भी इस तरह के कामों को अंजाम देने से कासिर रही।
नाज़रीन, इंसानों से प्यार व मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मज़हब में तहसीन की नज़र से देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत करार दिया है। अल्लाह ताला ने इंसानों को यकसा सलाहियतों और औसाफ से नहीं नवाजा, उनके दरमियान फ़र्क व तफावत रखा और यही फ़र्क व तफावत इस कायनात रंग वो का हुस्न जमाल है। नाजरीन, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है और वो शख्स अल्लाह को ज़्यादा महबूब है जो इसके कुंबे के लिए ज़्यादा मुफीद हो। सुभान अल्लाह, इस रब को अपने बंदों से इस कदर मोहब्बत है कि वो इनको अपना कुंबा करार देता है, हालांकि वो सुब्बू और खुद्दूस ज़ात है। उसे किसी कुंबे की ज़रूरत और एहतियाज हरगिज़ नहीं। इंसानियत की खिदमत के बहुत से तरीक़े हैं। बेवाओं और यतीमों की मदद, मुसाफिरों, मोहताजों और फ़क़रा और मसाकिन से हमदर्दी, बीमारों और माजूरों, क़ैदियों और मुसीबत ज़दगान से ताउन, ये सब खिदमत खल्क़ के काम है। और वसी तनाजुर में इन सब से बढ़कर इंसानों से हमदर्दी ये है कि उनको दावत व तबलीग और तालीम व तरबियत के ज़रिए दोज़ख की आग से बचाया जाए और रब की रज़ा और सिरात मुस्तक़ीम के तरफ इनको दावत दी जाए। मरकज़ी बीजेपी वाली हुकूमत जहां आवाम को धोखा दे रही है, कोरोना वबा कहर के नाम पर टीका अंदाज़ी को मैनिफेस्टो में शामिल करते हुए बिहार के इंतखाबात में, लेकिन रियासती तेलंगाना में गरीब आवाम को मुफ्त कोरोना टीका का ऐलान किया गया है। नाजरीन, रियासती वज़ीर इटाला राजेंद्र ने कहा है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन ईजाद होते ही तेलंगाना की आवाम को दिया जाएगा। इस बात की हिदायत रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दी है। बीजेपी की जानिब से बिहार में इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में वैक्सीन तैयार होते ही बिहार के आवाम को मुफ्त देने का ऐलान करने पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए इटाला राजेंद्र ने कहा कि मुल्क की तमाम आवाम को कोरोना का टीका देना मरकज़ी हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। जैसे कोरोना वबा का टीका मंजर आम पर आएगा, तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम सरकारी व खानगी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर, सिब्बी अमला, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ को देने के मामले में अव्वलीन तरजीह देगी। इसके बाद सफाई अमले को दिया जाएगा। इन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR को गरीबों का दोस्त करार देते हुए कहा कि तिब्बी अमले के बाद टीका गरीबों को दिया जाएगा, बिलखुसूस यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को देने के बाद समाज के तमाम तबक़ात को टीका दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में बारिश व सैलाब की तबाही से रियासती वज़ीर आला KCR बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार थे। इन्होंने फौरी मालियाती पैकेज का भी ऐलान किया है। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन, हुकूमत का ये इमदादी एक पैकेज किन मुस्तहिकीन तक पहुँच रहा है अभी तक किसी को खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से फलाही तंजीमों की जानिब से जिस तेज़ी से काम अंजाम दिया जा रहा है, अवाम को राहत कारी पहुँचाने के सिलसिले में जो काबिल तहसीन काबिल सताइश है। वर्ज़ नाज़रीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ।